کے خلاف نہیں بلکہ پنجاب بھر کے اندر سرکاری املاک کو ان مافیات سے نجات دلا کے عوام کے فلاح و بہبود کے منصوبوں پہ ان زمینوں کو استعمال میں لانا اور اس پہ عوام کے ریلیف کے پروجیکٹ کو انیشیٹ کرنا، یہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی جو عوام دوستی ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنی پریس کانفرنس میں آپ کو وہ تمام جو پنجاب حکومت کی ترجیحات ہیں، جو اب تک کی کاوشیں ہیں اور جو ہماری اچیومنٹس ہیں، اس حوالے سے وہ اپڈیٹ کریں۔ تھینک یو سر، اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں کو آج قبضہ مافیا کے بارے میں کچھ بریف کرنا چاہوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، عوام کے مفادات کے تحفظ اور جو ہر قسم کا جو مافیا ہے اس کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ ابھی تک تقریباً 450 ارب روپے کی جو پراپرٹی ہے وہ ریکور کی جا چکی ہے۔ 1,55,000 ایکڑ جو زمین ہے وہ ایلیگلی جو ان لوگوں کے پاس تھی ان سے واگزار کرائی گئی ہے۔ اس میں شوگر مافیا ہو، مہنگائی مافیا ہو یا قبضہ مافیا ہو، سب لوگوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو گزشتہ 7 دن ہے، 1 ہفتے کی جو کارروائی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں 403 FIRs پنجاب کے اندر درج کی گئی ہیں اور اس میں 31 اضلاع کے اندر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اس میں 22 ارب 32 کروڑ اور 70 لاکھ روپے کی 12,318 ایکڑ جو سرکاری زمین تھی وہ واگزار کرائی گئی ہے اور اس میں 97 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اور جو یہ اضلاع ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہاں پہ کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اس میں سرگودا، شیخوپورہ، راولپنڈی، راجن پور، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، ملتان اور ناروال ڈسٹرکٹ شامل ہیں۔ یہ جو سرکاری اراضی ہم نے واگزار کرائی ہے، اس کو انشاءاللہ عوام کے فلاح و بہبود کے جو پروجیکٹس ہوں گے اس میں اس کو ہم استعمال کریں گے۔ یہ بالکل غیر قانونی طور پر جو جس کسی کے تصرف میں بھی ہے اس کو ہم برداشت کسی بھی صورت نہیں کریں گے، بلکہ جتنا اس نے استعمال کیا اس کا تاوان بھی وصول کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی پورے وثوق کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی قسم کی جو سیاسی وکٹمائزیشن ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تمام اکراس دی بورڈ جس کے بھی خلاف کارروائی بنتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس میں کسی کے خلاف جو وکٹمائزیشن ہے وہ بالکل نہیں کر رہے۔ یہ جو 7 روز میں 31 اضلاع میں کارروائی ہوئی ہے، اس کے بڑے خاطر خواہ جو نتائج ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حکومت کا 1 انچ بھی واگزار نہیں کروایا جاتا۔ اور یہ تحریک انصاف کا جو وین ہے وہ پرائم منسٹر کا وین بھی ہے، یہ اس کے ساتھ الائنز ہے اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ جو سرکاری املاک کو آئندہ سے نقصان نہ پہنچے اور اس طرح سے کوئی بھی فرد، کوئی بھی شخص ان کے اوپر قبضہ کرنے کی جرات نہ کر سکے، اور یہی ہمارا عزم ہے۔ بہت شکریہ۔ سوالات کے لیے آپ چینل وائز ہم نام لے لیتے ہیں تاکہ آپ سب کو معاون خصوصی اطلاعات پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار فردوس عاشق آوان کی جانب سے نیوز بریفنگ کی جا رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ انسداد تجاوزات آپریشن اور قبضہ مافیا سے اس حوالے سے کئی جو ہے وہ فٹ زمین جو ہے وہ واگزار کرائی جا چکی ہے۔ اس وقت بھی وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کی جانب سے نیوز بریفنگ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور معاون خصوصی فردوس عاشق آوان اس وقت لاہور میں نیوز بریفنگ دے رہے ہیں۔ انسداد تجاوزات آپریشن کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے آگاہ کیا گیا اور قبضہ مافیا سے واگزار کرائی گئی زمین کے حوالے سے بھی انہوں نے آگاہ کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد جیسے لاہور میں منشا بم کا کیس تھا، ایک ایگزامپل تھی، تو دوبارہ وہی لوگ یا ان کے قریبی ان جگہوں پر پھر قابض ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ساتھ اس کے یہ بتا دیجیے گا کہ جس تیزی سے کرونا پھیل رہا ہے
एलान कर रही है, अमल दरामद अभी भी उतनी सख्ती से दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसके बढ़ने की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। जहाँ तक आपका पहला सवाल है उससे मुतल्लिक मैं ये कहूँगा कि ये बाकायदा हमने स्ट्रेटजाइज कर लिया है। रेवेन्यू बोर्ड के अंदर जो ज़मीनें वागुजार कराई जाती हैं उसका पूरा डाटा और एक लैंड बैंक जो हम बना रहे हैं, और उनकी फिर मसरफ़ भी देखेंगे, यूटिलाइजेशन भी देखेंगे कि किस मकसद के लिए इनको हम इस्तेमाल कर सकेंगे। इस तरह से अगर हम छोड़ देंगे तो दोबारा कब्ज़े का एहतमाल हो सकता है। दूसरी बात, जहाँ तक कोरोना की आपने की है, ये परसों हमने एक आपको ब्रीफिंग भी दी है और उसमें तमाम पंजाब की जो डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ हमने शेयर की हैं। और आज भी अभी इंशाअल्लाह कुछ देर बाद एक दोबारा भी हमारी कोई हाई लेवल मीटिंग हो रही है जिसमें हम डिसीजन लेने जा रहे हैं और उसमें जो नोटिफिकेशन है वो होम डिपार्टमेंट ने और हेल्थ ने इशू कर दिया है, आपकी नज़र से गुजरी होगी, कुछ चीज़ों पे पाबंदी है। तो जिस तरह पहले से हम इस के ख़िलाफ़ लड़ते रहे इंशाअल्लाह अब भी लड़ेंगे। और अब हम ये भी नहीं चाहते कि कंप्लीट लॉकडाउन भी हो, और हम ये भी चाहते हैं कि जो इसका फैलाव है उसको भी हम रोकें। ये तमाम चीज़ें एक स्ट्रेटजी के तहत हम लेके चल रहे हैं। थैंक यू। खिलाफ नहीं बल्कि पंजाब भर के अंदर सरकारी अमलाक को इन माफिया से निजात दिला के अवाम के फलाह बहबूद के मंसूबों पे उन ज़मीनों को इस्तेमाल में लाना और उस पे अवाम के रिलीफ के प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना, ये वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की जो अवाम दोस्ती है उसका मुंह बोलता सबूत है। मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको वो तमाम जो पंजाब हुकूमत की तरजीहात हैं, जो अब तक की काविशें हैं और जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, इस हवाले से वो अपडेट करें। थैंक यू सर, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों को आज कब्ज़ा माफिया के बारे में कुछ ब्रीफ़ करना चाहूँगा। आपको पता है कि हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और जो हर किस्म का जो माफिया है उसके ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है। अभी तक तकरीबन 450 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो रिकवर की जा चुकी है। 1,55,000 एकड़ जो ज़मीन है वो इलीगली जो इन लोगों के पास थी उनसे वागुजार कराई गई है। इसमें शुगर माफिया हो, महंगाई माफिया हो या कब्ज़ा माफिया हो, सब लोगों के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी है। और आज मैं आप लोगों के सामने जो गुज़श्ता 7 दिन है, 1 हफ़्ते की जो कार्रवाई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें 403 FIRs पंजाब के अंदर दर्ज की गई हैं और इसमें 31 अजला के अंदर ये कार्रवाई की गई है। इसमें 22 अरब 32 करोड़ और 70 लाख रुपए की 12,318 एकड़ जो सरकारी ज़मीन थी वो वागुजार कराई गई है और इसमें 97 अफराद को गिरफ़्तार भी किया गया है। और जो ये अज़ला हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसमें सरगोधा, शेखुपुरा, रावलपिंडी, राजनपुर, टोबा टैक सिंह, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और नारोवाल डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। ये जो सरकारी एराज़ी हमने वागुजार कराई है इसको इंशाअल्लाह आवाम के फलाह बहबूद के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर जो जिस किसी के तसर्रुफ़ में भी है इसको हम बर्दाश्त किसी भी सूरत नहीं करेंगे, बल्कि जितना उसने इस्तेमाल किया उसका तावान भी वसूल किया जाएगा। और ये बात भी पूरे वसूख के साथ मैं आपके साथ कह सकता हूँ कि किसी किस्म की जो सियासी विक्टिमाइजेशन है उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तमाम अक्रॉस द बोर्ड जिसके भी ख़िलाफ़ कार्रवाई बनती है वो हम कर रहे हैं। इसमें किसी के ख़िलाफ़ जो विक्टिमाइजेशन है वो बिल्कुल नहीं कर रहे। ये जो 7 रोज़ में 31 अजला में कार्रवाई हुई है इसके बड़े खातिर खा जो नताइज हैं वो सामने आ रहे हैं और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत का एक इंच भी वागुजार नहीं करवाया जाता। और ये तहरीक इंसाफ का जो विजन है वो प्राइम मिनिस्टर का विजन भी है, ये उसके साथ अलाइंस है। और इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि जो सरकारी अमलाक को
को आइंदा से नुकसान न पहुँचे और इस तरह से कोई भी फ़र्द कोई भी शख्स इनके ऊपर कब्ज़ा करने की ज़रूरत न कर सके, और यही हमारा अज़म है। बहुत शुक्रिया। सवालात के लिए आप चैनल वाइज हम नाम ले लेते हैं ताकि आप सबको मुआवन खुसूसी इत्तलात पंजाब आला पंजाब उस्मान बुज़दार और मुआवन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार फिरदौस आशिकावान की जानिब से न्यूज़ ब्रीफिंग की जा रही थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन है और कब्ज़ा माफिया से इस हवाले से कई जो है वो फिट ज़मीन जो है वो वागुज़ार कराई जा चुकी है। इस वक्त भी वज़ीर आला पंजाब और उनकी मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिकावान की जानिब से न्यूज़ ब्रीफिंग जारी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिकावान इस वक्त लाहौर में न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे हैं। इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन के हवाले से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से आगाह किया गया और कब्ज़ा माफिया से वागुज़ार कराई गई ज़मीन के हवाले से भी उन्होंने आगाह किया। कुछ ही अरसे बाद जैसे लाहौर में मंशा बम का केस था, एक एग्जाम्पल थी, तो दोबारा वही लोग या उनके करीबी इन जगहों पर फिर काबिज हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे साथ इसके ये बता दीजिएगा कि जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है, हुकूमत ऐलानात कर रही है, अमल दरामद अभी भी उतनी सख्ती से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसके बढ़ने की जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। जहाँ तक आपका पहला सवाल है उससे मुतल्लिक मैं ये कहूँगा कि ये बाकायदा हमने स्ट्रेटजाइज कर लिया है। रेवेन्यू बोर्ड के अंदर जो ज़मीनें वागुज़ार कराई जाती हैं उसका पूरा डाटा और एक लैंड बैंक जो हम बना रहे हैं, और उनकी फिर मसरफ़ भी देखेंगे, यूटिलाइजेशन भी देखेंगे कि किस मकसद के लिए इनको हम इस्तेमाल कर सकेंगे। इस तरह से अगर हम छोड़ देंगे तो दोबारा कब्ज़े का एहतमाल हो सकता है। दूसरी बात, जहाँ तक कोरोना की आपने की है, ये परसों हमने एक आपको ब्रीफिंग भी दी है और उसमें तमाम पंजाब की जो डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ हमने शेयर की हैं। और आज भी अभी इंशाअल्लाह कुछ देर बाद एक दोबारा भी हमारी कोई हाई लेवल मीटिंग हो रही है जिसमें हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, और उसमें जो नोटिफिकेशन है वो होम डिपार्टमेंट ने और हेल्थ ने इशू कर दिया है, आपकी नज़र से गुजरी होगी, कुछ चीज़ों पे पाबंदी है। तो जिस तरह पहले से हम इसके ख़िलाफ़ लड़ते रहे इंशाअल्लाह अब भी लड़ेंगे। और अब हम ये भी नहीं चाहते कि कंप्लीट लॉकडाउन भी हो, और हम ये भी चाहते हैं कि जो इसका फैलाव है उसको भी हम रोकें। ये तमाम चीज़ें एक स्ट्रेटजी के तहत हम लेके चल रहे हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।